लोग कहते हैं ना मैं बैक होम। तो इस बंदे ने मुझे एडवाइस दी, कहता है यार पंकज तेरी लैंग्वेज में तू यूज कर रहा है बैक होम, तो मुझे ये लग रहा है कि तू कनाडा को होम नहीं मान रहा, तू इंडिया को ही होम मान रहा है। तो कहता है जब तू किसी चीज को फुली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो चीज तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी। Hey guys, welcome back to another podcast. आज हम बात करेंगे पंकज से, who is the CEO of iBridge Capital, which is one of the largest brokerages in Canada. So Pankaj came to Canada back in 2012 and he did not know English. वहां से लेके CEO तक का सफर, कुछ तो बात होगी बंदे में. So let's straight away go into the interview and understand his journey and what it takes to be successful in Canada. Pankaj, I'm so glad that you have come, and I know that you are outside and you have taken time out, and you are at a site. So for those of you who are new to the podcast, we actually try to reach out to people who have achieved something or are achieving something. It's not about achieving; it's about that journey, and we just capture that journey from people who have been in Canada for about 8-10 years, and same as you came about 8-9 years back. And we want to walk your journey with you. So Pankaj, just for people who don't know, you also have a podcast, so I'm sure that a lot of people would relate to you. But just tell us, where you are from, when you came to Canada, and what are you doing right now? Thank you. First of all, I'm very grateful for this opportunity to be on your podcast and be able to share my story and experiences with your audience. And my intent is that my story helps or inspires someone to live the same journey I have been very blessed to live. So 9 साल पहले जैसे आपने बोला, exactly almost 9 साल पहले अगस्त 2012 में मैं पहली बार कनाडा आया था. Just a quick backstory, I met a Canadian girl on Shaadi.com and immediately we got really connected with each other. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. 2 साल हमने एक दूसरे से बात की. Eventually we got married. She's a Canadian born and raised here. So it was a very cultural shock. Language was different, food was different. मतलब दुनिया पूरी बदल गई थी जब मैं यहाँ पे आया. वो ऐसे लग रहा था जैसे टीवी में घुस गए हो, और टीवी मतलब is real. Never imagined seeing Niagara Falls, CN Tower and stuff. So in the beginning, just like every immigrant, I had a lot of hopes, dreams. And also I came up with the backup plan कि यार अगर मतलब इंडिया में मैं ठीक ठाक कर रहा था कि अगर यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नहीं कर पाया 2-3 महीने में तो वापस चला जाऊंगा, because I don't want to struggle here. Because वो एक होता है ना, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो पहले से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो देखते हैं ये क्या करेगा वहां जाके. ये तो मतलब मेरे पास कोई खास पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह की थी मैंने, सिंपल, तो कोई स्किल सेट ज्यादा था नहीं. तो मैंने कहा कि चलो 3 महीने देखते हैं क्या होता है, and then I'll come back. So came with an open mind, but then the moment I landed, I just started falling in love every day about everything, like culture, air, like nature, log, food. मैं बहुत ओपन माइंडेड शुरू से मैं लाइफ में रहा हूँ. मुझे होता है कि नई चीजें ट्राई करनी चाहिए. जब तक पता नहीं है आपको तो आप मतलब डिसाइड नहीं कर सकते. सिर्फ सुन के मतलब बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स किल कर देते हैं क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, वो ट्राई भी नहीं करते. तो मैंने ये चीज अपने आप को बोला कि यार ट्राई करेंगे. मतलब 100 में से 90-99 बंदे बोल रहे थे कि यार मिठी जेल है, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू मतलब वापस चल जा, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है वहां पे, यहाँ पे तुझे ऐसे और जॉब करनी पड़ेगी. तो मैंने वो इग्नोर करता रहा, सुनता रहा, लेकिन मैंने मतलब उसको कॉन्क्रीट नहीं अपने सीरियसली लिया. तो मैं धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लिए. मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरी जो स्किल सेट है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो सकती है एप्लीकेबल. तो मैंने लर्न करना शुरू किया फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में. मुझे गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोग्राम्स मिले जो बहुत न्यू कमर्स को भी मिलते हैं. एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज मिली जो हेल्प कर रही थी. तो बस वहीं से स्टेप लेते रहते, एक डायरेक्शन दूसरी तीसरी करते करते 3 महीने में मैंने एक जॉब ढूंढी जहां में मैंने इंग्लिश अपनी बेटर करनी शुरू की. मैं पंजाब से आया था, पंजाबी बोलता था प्राइमरीली, पंजाबी और हिंदी. सो इंग्लिश मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह सब्सक्राइब किया, देखनी शुरू की नेटफ्लिक्स. तो इंग्लिश लर्न की. फिर मुझे ये भी लगा कि इंग्लिश अंडरस्टैंड तो करते हैं, बट जब स्पीकिंग आपकी क्लियर नहीं होगी तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है. तो मैंने फिर कॉल सेंटर में एक जॉब ली. कॉल सेंटर में मैं अपनी इंग्लिश पे वर्क करता रहा. 3-4 महीने के बाद मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ बैंक. बहुत बंदे थे वहां पे इंटरव्यू में, तो मैं किसी तरीके उल्टे सीधे जवाब देके निकल गया. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बैंक में जॉब करने की. तो
which was a very lucky break. बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि एकदम से बैंक जब आप नए आते हैं कनाडा में और आपके पास क्वालिफिकेशन भी है नहीं, आपके पास कनेक्शंस भी है नहीं, तो I found myself very very lucky, like once in like 100,000 people, like you know कि यार मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इतने अच्छे बैंक के साथ। तो बस फिर वही स्टोरी बैंक सॉरी, से शुरू। एक चीज मेरे को क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। सो जब कनाडा आए थे तो ये बैंक की जॉब तो थोड़ा टाइम लग गया लगने में, राइट? कॉल सेंटर की जॉब। सो पहली जॉब क्या करी थी यहाँ पे आके 2012 में? पहली जॉब तो it wasn't like that easy to ignore people. जैसे मेरी फैमिली जो थी उन्होंने खुद बोला, कहते यार तेरे को तो पंजाबी आती है कि ज्यादा से ज्यादा तू रेस्टोरेंट में काम कर सकता है अभी, जहाँ पे तुझे सिर्फ डायरेक्टेड काम करने पड़ेंगे और कुछ दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सुन ली उनकी बात। तो मैं रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट था, मैं वहां पे मैं जॉब के लिए मैं गया। तो वो कहते कि काम तो तुझे कुछ अभी बता नहीं सकते, ऐसे कर, बर्तन मांज दे, झाड़ू मार दे, ये कर दे, मतलब सैंपल दे दे लोगों को गली में जाके बेटर चिकन का, कि अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनको सेल करना। तो मेरे को लगा कि चलो जो भी है करते हैं, मतलब इंडिया में तो कभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो अंदर से बहुत दिल भी टूटा, बहुत रोया भी मैं। तो मुझे लगा यार ये तो वही रियलिटी होगी जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। फिर मैंने कहा कि यार मैंने अपने आप को 3 महीने का प्रॉमिस किया, 3 महीने तो अटके रहो। तो 10 दिन मैंने वो काम किया। जब मेरे कॉन्फिडेंस सा बिल्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बेटर हो रहा था अपने काम में, तो मैंने मैनेजर से पूछा यार कि मैं सैलरी क्या मिलेगी। वो कहते सैलरी नहीं, आपको लंच और डिनर मिलेगा बस, कहते सैलरी थोड़ी मिलेगी। तो मुझे बड़ा ऑफेंसिव लगा कि यार ऐसे कैसे तुम सैलरी नहीं दोगे, मतलब मैं 6-8 घंटे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला, मैंने यार अगर काम नहीं करोगे, मैं क्या सैलरी नहीं मिलेगी, तो आई डोंट थिंक कि मैं काम कर सकता हूँ। तो उसने मुझे एक बात बोली, मुझे अभी भी याद है। कहता है यार तेरे जैसे बहुत बंदे आते हैं, कहता है कि उनकी भी ऐसी एस्पिरेशन होती हैं, कहता है लेकिन ना कुछ बनता नहीं है उनका। कहता फिर बाद में ना फिर दोबारा हमारे पास आके हाथ जोड़ते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो मुझे बस अंदर से मतलब आग लग गई। मैंने कहा यार हाउ डेयर, कि तू, तेरे को कैसे लगा कि मैं भी वही बंदा होऊंगा? 1% चांस तो हो सकता है ना कि मैं वो बंदा नहीं होऊंगा। तो बस पहले तो उसे प्रूव करने के लिए मैंने कहा नहीं, अब मैं जॉब ढूंढूंगा तो व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढूंगा। तो मैंने फिर रिलेंटलेसली देखी जॉब, और फाइनली मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिल गई रॉजर्स के। बहुत ऑसम, लाइक अमेजिंग, यू नो। पंकज, जब बात करते हैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड आ जाते हैं आज की डेट में, एंड फिर हम बीच की जर्नी की बात करेंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? So yeah, so bank journey took me to finance world. I started learning more about mortgages, real estate. करते कराते पिछले 3 साल पहले मैंने कंपनी शुरू की एक पार्टनर के साथ, कॉल्ड आईब्रिज कैपिटल। तो मैं अभी कंपनी का सीईओ हूँ। तो हमारी ब्रोकरेज जो है फोकसेस ऑन regular Canadian mortgages with banks. We also provide alternative lending solution, private mortgages. We also do construction financing for builders and stuff. So धीरे धीरे टीम बिल्ड हो गई, तो अभी मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। और साथ में मैं कपल ऑफ एक्सक्लूसिव बिल्डर्स के साथ मैं उनको रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी कंसल्ट और स्ट्रेटेजाइज करता हूँ। That's like an amazing transition. वापस रेस्टोरेंट वाले के पास गए कभी खाना खाने वहां पे? हाँ, मैं गया था एक्चुअली। जब मैं बैंक में जॉब लगी थी, मैं बैंक का कार्ड लेकर सूट डालकर एक बार गया, तो उसने पहचाना नहीं मुझे। मैंने कहा भैया मैं तुझे 6 महीने पहले तूने मुझे बोला था कि ये देख मैंने जॉब ले ली। अब मुझे रियलाइज होता है वो बहुत ईगो में था। मतलब मैं उसे प्रूव करना चाहता था। तो लेकिन अभी मैं उसका ग्रेटफुल भी हूँ कि अगर उसने मुझे ना चैलेंज किया होता तो शायद मैं भी मतलब कंफर्टेबल हो जाता और ना ट्राई करता। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स या न्यू कमर्स आते हैं, हर बंदा हसल करता है, हर बंदा मेहनत करता है। तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन। लेकिन मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि यार डोंट सेटल इन। If this is what you want to do and you're happy, fine. But don't just think that this is all you have to do. That mindset is like what's a fixed mindset. अगर तुम open minded होगे, तुम कुछ भी कर सकते हो. Sky is the limit. So that is my kind of my goal and my mission in life कि यार अगर मैं 5-10-15 बंदों को, जैसे मैं खुद इंस्पायर हुआ था किसी चीज से, किसी बंदे से, अगर मैं कर पाऊं, वही मेरी लाइफ का मिशन है। तो पंकज, अब बात करते हैं कि अब आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, ठीक है, तो वो बढ़िया चल रहा था, फिर बैंक में मॉर्गेजेस वगैरह करना शुरू। सो व्हेन डिड यू डिसाइड कि नहीं यार बिजनेस करते हैं, मतलब नहीं मेरे को जॉब नहीं करनी? हाउ डिड यू मेक दैट ट्रांजिशन? So core of my heart, I was like always like a kind of a self-employed person. Like I always believed in myself more than anything else, right? तो वो मेरे कोर में था। तो इंडिया में भी मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता था, बिजनेस वगैरह मैं करता था। तो मुझे एंटरप्रेन्योर लाइफ अच्छी लगती है कि यार अपनी मर्जी करो, अपना दिल से जो करना करो, करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। एंड that's why like when I was at the bank, I was acting like a self-employed. That's why I was very successful at the bank, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरा ही बैंक है और मैं ही मतलब कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं एम्प्लॉई हूँ।
तो उसकी वजह से मुझे आई वाज वेरी हाईली सक्सेसफुल इन द बैंक, वो सेल्फ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस बस वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा, क्लाइंट बिल्ड होते रहे, और जब मुझे लगा कि यार नो ऑफेंस की बैंक से तो ठीक है आपकी पहचान बैंक से बनती है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे लिए आ रहे हैं। आज मैं ग्रीन डाल रहा हूँ, कल ब्लू डाल लूंगा, परसों रेड डाल लूंगा, वो तो एक टी शर्ट का कलर है। लोगों को मेरे साथ डील करना है। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार मैं खुद ही मॉर्गेजेस करता हूँ और देखते हैं कैसे चलता है। तो फिर वैसे ही फिर से पंगा ले लिया, फिर से दोबारा से रीसेट किया, दोबारा मॉर्गेजेस किए, और पहले 2 साल बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया खुद के लिए। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी किसी ने कहा कि यार ब्रोकरेज खोलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब मेरा एटीट्यूड हमेशा ये रहा है कि आंसर पता है नहीं पता, कह दो ठीक है, और बस उसके बाद ट्राई करो, और ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, फिगर आउट हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू वांट टू फिगर आउट। जब आप बोल दोगे कि नहीं फिगर आउट करना, फिर फिगर आउट नहीं होगा। वो तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैसे आपने बोला कि आप इंडिया में भी बिजनेस करते थे, सो व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू सी आज की डेट में? जैसे अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है कि कोई भी न्यू कमर आ रहा है, सो व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू सी व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग अ बिजनेस और operating a business, any kind of business in India versus Canada? Biggest difference I would say is, again, I could be wrong because my understanding of India and how it works is from 10 years back, right? तो 10 साल पहले जो चीजें थी अब शायद ना हो। So I will be very careful when I say this कि मेरे हिसाब से जो बिजनेस का मेन डिफरेंस बिजनेस सेटअप करने में ये है कि कनाडा में आपको इजी स्टेप्स पता है, कैसे कैसे एक एक स्टेप करके आपने मतलब जहां तक भी जाना है आप उसको डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस है, आपको एक द एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव, राइट? इंडिया में जैसे, अगेन मैं पंजाब से हूँ, ज्यादातर मतलब पहली बात जब आप बिजनेस करने कहते थे कि वो कहते थे और बिजनेस तो फेल ही होने हैं, वो बिजनेस ते मतलब तेरे को पैसे है नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते। यू नो माइंडसेट ही होता था बन जाता कि यार और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं तो मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको पैसे नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया चाहिए, आपको क्लियर प्लान चाहिए, और आप कोई भी बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। दैट कुड बी इन इंडिया टू, बट आई डोंट नो हाउ पीपल सी इट। नहीं, डेफिनेटली। एंड अब ऑनलाइन की वजह से शायद इंडिया में भी ज्यादा लोग करना शुरू हो गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड बिल्डिंग देयर बिजनेसेस। बट डेफिनेटली आई थिंक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस अभी भी काफी ज्यादा दिमाग में रहता है कि नहीं वैसे बिजनेस करना है। बट आई थिंक दैट माइंडसेट इज चेंजिंग डेफिनेटली। इतने टाइम इन योर लाइफ, ये 9 साल जो कनाडा में थे आप, आपने बिजनेस करा, आपने जॉब करी, ऑब्वियसली द इनिशियल स्ट्रगल वाज देयर, बट जब बिजनेस कर रहे थे लाइक वाज देयर a time when you said कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, it's overwhelming and कुछ गलत हो रहा है, and you know, tell us, walk us through that struggle. Okay, so it is happening right now. Okay. So business एक ऐसी चीज है कि आप जितना मर्जी आपको लगे कि यार मुझे पता है कैसे करना है, लाइफ बिजनेस इज लाइक लाइफ, और लाइफ हमेशा सरप्राइजेस थ्रो करती है। अभी मैं अपनी करंट स्टेट में, अभी अगर आप बात करें आज की डेट में, आई एम गोइंग थ्रू अ क्राइसिस which I never thought would ever come to me in my life. Okay. Because there was a certain way of being in business I had. मेरे को था कि यार अगर आपके दिल में आपका साफ है ना और आप अपना काम करते रहो तो आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन वो मेरी मतलब फिलॉसफी कहीं ना कहीं मेरे फेस पे आके गिर पड़ी, क्योंकि क्या हुआ कि मैं अपनी इंटेंट से अच्छे काम करता रहा, लेकिन उसमें दूसरे बंदे को कैसे मतलब लगा वो मेरे बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहा है। जैसे आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉइज होते हैं, आप उनको कैसे प्रॉमिस करते हैं, आप उनको कैसे इंस्पायर करते हैं, वो कैसे उसको डीकोड कर रहे हैं। बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती हैं जो आपको बार बार फेलियर लेकर आएंगी। लेकिन मैंने बार बार फेलियर से एक चीज ये सीखी है, फेलियर को अगर आप लर्निंग से सब्स्टिट्यूट कर देना तो फिर आपको लगेगा कि यार लर्निंग करने के लिए फेलियर तो चाहिए, तो फिर फेलियर से भागे क्यों। तो इसलिए अगर मैं आपको एक तरफ से ये बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बिग क्राइसिस विद बिजनेस बिकॉज देयर वर सर्टेन डिसीजंस आई मेड व्हिच आर टर्निंग आउट नॉट टू बी द बेस्ट डिसीजंस, बट आई एम स्टिल लर्निंग समथिंग ब्यूटीफुल, बिकॉज देन आई एम लाइक ओके गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट हैव टू डू दिस क्योंकि जरूरी नहीं है कि कई आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप अच्छा ही करोगे। कई बार इंटेंशन अच्छी के साथ भी आप गलत ही करते हो, तो आपको पता ही नहीं होता। सो वो मेरी एक लर्निंग रही है कि बिजनेस इज ऑलवेज गोना बी लाइक दिस। वो फिल्मों में दिखता है हमें, बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में बिठा दिया कि आप एक दिन आप नीचे काम कर रहे हो, आप एक दिन बॉस बन गए, क्योंकि एक स्ट्रगल अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। जब मैं अकेला काम करता था अपनी स्ट्रगल्स थी, जब 5 बंदे काम करने लगे फिर एक डिफरेंट स्ट्रगल होगी, अब 15-20 बंदे काम करते हैं एक डिफरेंट स्ट्रगल होगी। और आई हैव
like I take very proud in saying that I have failed way more than anybody I have known in my life, and that is why I am who I am, because I fail way more, and I actually now get excited when I fail, because मुझे होता है कि और ये तो पता ही नहीं था यार, ये तो मतलब अगर ये ना होता तो ऐसा तो पता नहीं लगना था। तो बहुत पैसे गंवाए हैं, बहुत कैपिटल गंवाई है। एक मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सो अगेन, you know, you can't always see like bright side of things, you always have to see like the dark side of things too, and accept and acknowledge it too, not run away from it. And I think सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस, राइट? सो कभी भी कुछ गलत होता है तो ऐसा लगता है कि यार अब दुनिया खत्म हो गई, मैं 30 साल का हो गया, मैं 35 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट यू हैव अनदर 25 30 40 इयर्स टू गो। एंड एक साल अगर खराब गया भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले 20 साल बाद यू वुड जस्ट लुक एट दैट वन ईयर एंड से कि उस साल की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। सो आई थिंक दैट पेशेंस इज वेरी क्रिटिकल, so definitely what you say is abhi meri bhi life mein aisa chal raha hai when I'm making a transition from getting into a job. pehle bhi main business karta tha, ab main job kar raha hu and I'm making a transition towards business again, and definitely whatever you are saying, it's main bahut relate kar pa raha hu usse, and I'm pretty sure that a lot of people who are watching are relating. So Pankaj, next na main ek is section ko kehta hu anti crib section, because a lot of people when we come here हमें weather से problem होती है, यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस देने से प्रॉब्लम होती है, हमें मेडिकल सिस्टम से एक टाइम के बाद प्रॉब्लम होती है। सो how do you as a person get over, and what would be your advice to new immigrants who talk about all the negatives, and how did you go through that, and how did you deal with it, and what do you think about that now? It's a very good question, actually. One of the things I have always been noticed, especially people coming from subcontinent, India, Pakistan, Sri Lanka, that we are wired to think negative. We are wired to think pessimist. मतलब हम pessimism से lead करते हैं, always शक से lead करते हैं, right? Which is again, it's a kind of I see it as a survival mechanism, right? कि हमें मतलब सर्वाइव करने के लिए अगर हम पहले क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे फिर ही हम सर्वाइव करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब हम कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका, जब हम इंडिया से बाहर हम कहीं जाते हैं, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड आई सी दैट वी टेक द सेम माइंडसेट एंड वी गो इनटू अ डिफरेंट atmosphere or different environment, but the mindset is still the same. But what we fail to understand is that mindset blocks our growth in that environment. You have to have a evolving and an open mind to thrive and excel in the new environment you are in. For example, मैंने एक बहुत अच्छी चीज, मुझे किसी ने एक एग्जांपल दी थी, दो चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ जो भी बंदे नए हैं स्पेशली उनके लिए। एक बंदे ने ना, मैं ना उससे बात करने से पहले मैं रेफरेंस करता था बैक होम, लोग कहते हैं ना मैं बैक होम right. तो इस बंदे ने मुझे एडवाइस दी, कहता है यार पंकज तेरी लैंग्वेज में तू यूज कर रहा है बैक होम, तो मुझे ये लग रहा है कि तू कनाडा को होम नहीं मान रहा, तू इंडिया को ही होम मान रहा है। कहता है जब तू किसी चीज को फुली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो चीज तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? तुझे भी तो उसको होम बनाना पड़ेगा ना, तभी फिर तुझे होम वाली फीलिंग आएगी। अगर तू यही सोचता रहा मेरा होम तो यार इंडिया है, यहाँ तो मैं सिर्फ पैसे कमाने आया हूँ, तो then you're gonna keep feeling like outsider all the time and you're gonna see problems and nothing else. तो ये मुझे एक स्टेप बहुत हेल्प हुई। एक और चीज मुझे मतलब बंदे ने एडवाइस दी थी, एक बहुत अच्छे बंदे ने, कि ठंड को तो कुछ नहीं कर सकता, कंप्लेन कर सकता लेकिन कर कुछ नहीं सकता। How about you find fun in thund too, because we do find fun in thund. How about you lead with the thought of having fun in thund, because जैसे वो कहते हैं ना रब दे सारे रंग, this is all a part of nature. Thund is also part of nature. So वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं हमेशा ना मतलब एक बड़ा न्यूट्रल सा एटीट्यूड लेके चलता था इन चीजों को लेके, rather than starting with negative कि यार ठंड बड़ी है, मर गए पे जो, right? I'm like, oh yeah, it's cold, maybe I can buy a jacket, maybe I can find how to play winter sports, right? Maybe like I can just admire कि मैंने तो पंजाब में कभी स्नो ही नहीं देखी, अब like क्या beautiful snow है, right? You know, so attitude से तुसी अपना neutral भी रखो, positive. I feel like positive attitude has been thrown around a lot of time. Keep it neutral, right? Be open-minded, right? Maybe have you tried skiing? Have you tried skateboarding? Have you tried country skiing? Have you tried if you haven't tried those things, who knows, you might fall in love with those things, and then all of a sudden winter, all you want is winter.
मैं आज ही ना सिमरन को बोल रहा था कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू विंटर। आज हम सुबह वॉक करने गए तो थोड़ी ठंड लगी, मैंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी, तो आई वाज लाइक मेरे को मिस हो रहा है आपकी विंटर आएगी एंड नाउ वी हैव मूव टू किचनर, तो यहाँ पे ज्यादा स्नो होती है, तो आई वाज लाइक यार मजा आएगा, बिकॉज आई एक्चुअली एंजॉय, एंड हमारा तो फर्स्ट ईयर था और हमने कभी स्नो नहीं देखी थी ऐसे, तो आई एक्चुअली एंजॉयड माय फर्स्ट ईयर। तो मेरे को नहीं समझ आता जब लोग बोलते हैं ठंड है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। पंकज, मेरे को ना ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो ये ग्लास हाफ फुल वाली फीलिंग होती है, ये मोटिवेशन जो अंदर से आती है, ये जो इनकरेज हम अंदर से ही होते हैं कि नहीं यार इसको पॉजिटिवली देखो वर्सेस नेगेटिवली, जैसे मेरे को वो स्ट्रेंथ मिलती है जो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ वहां से। सो आपकी लाइफ में यू हैव कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आपको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी, एंड नाउ यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस विद इट्स अप्स एंड डाउन्स, एंड एबल टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन, डूइंग वेरी वेल फॉर द टीम। Like, what has been that one person or one thing or one um, discipline that you have followed all the time that has actually kept you going and kept you positive? Oh, that's a very, very, very deep question. अगर मैं ऑन टॉप देखूं तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमेशा चेंज होती रहती है। कई बार होती है, शुरू होती हैं पेरेंट्स से, फिर आ जाती हैं बीवी पे, फिर आ जाती हैं बच्चों पे, फिर आ जाती हैं एम्प्लॉइज पे। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होती हैं। लेकिन यू सेड इट वेरी वेरी प्रोफाउंड थिंग कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज ऑलवेज काइंड ऑफ कीपिंग इट एज एन एंकर। व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, मुझे ना दो चीजें, मुझे मतलब I come from a religious, very Hindu type religious family, तो दो चीजें मैंने ना ग्रंथों से, मंदिरों से, बाबों से, वहां से सुन के दो चीजें मुझे याद है। एक थी कि जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और दूसरी कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो मैं इन चीजों को लेके ना एक बेस बना लिया कि यार खुशी जितनी दोगे उतनी मिलेगी, पैसे जितने दूसरों को कमा के दोगे उतने मिलेंगे, एनर्जी जितनी तुम लोगों को दोगे उतनी तुम्हें वापस मिलेगी। दिस यूनिवर्स इज लाइक काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। तो मेरे को शुरू से ना एक मैंने मतलब फंडा ये कर लिया था कि यार लाइफ तो होती रहेगी, मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से तो होना नहीं है, लेकिन एक रूल बना लिया था कि कोशिश करते रहना, कि जब तक सांस है कोशिश करते रहो। Now, कोशिश doesn't necessarily mean that every day is going to be 10 on 10. Some days it's going to be 1 out of 10. Some days are going to be 10 out of 10. And you have to accept it. So वो एक relentless action और always trying your best to do best for others, ये दो चीजें मैं मतलब करता रहा। और वही मतलब चीजें वो कहते हैं ना कि एक माउंट एवरेस्ट भी अगर आपके सामने हो और आपको सिर्फ मजा आ रहा है, सिर्फ एक छेनी लेके बस एक ऐसे करने में मजा आ रहा है, आपका गोल नहीं है तोड़ने का, तो आप एक दिन एक ऐसी जगह पे तोड़ दोगे कि पूरी माउंटेन ही टूट जाएगी आपके आगे। लेकिन उसके लिए आप में पैशन होना चाहिए और उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई होनी चाहिए। और वो मेरे ख्याल से बहुत मिसिंग है कि मतलब मैं भी पूछता था लोगों से जो कंपनी में काम करना चाहते हैं कि व्हाट इज योर वाई, क्यों करना चाहते हो, पैसे क्यों कमाने हैं? पैसे तो सबको कमाने हैं, क्यों कमाने हैं पैसे? घर वालों के लिए कमाने, क्यों कमाने हैं? मैं घर वालों को देखना चाहता हूँ खुश, क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा देखा है कि वो सैड रहते हैं बगैर पैसों के। तुम्हें क्यों बॉदर करता है? क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनसे उनको अच्छा देखना चाहता हूँ। तो अब जब आप डीप अपनी वाई से कनेक्ट होते हो ना, फिर आप मतलब कुछ भी करते हो। वो कहते हैं ना मतलब then nothing really matters, then you are like यार अगर मुझे नैव के चेहरे पे स्माइल लेकर आनी है ना, तो I am gonna do anything it takes। फिर आप एक्शन लेते रहते हो, फिर वो मोटिवेशन आती रहती है। मैं सोचता हूँ बुक्स और जो पॉडकास्ट, सॉरी टू कट यू ऑफ, बुक्स और पॉडकास्ट और ये जो इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं ना, ये आपको मोमेंटरीली मोटिवेट करते हैं। और वो मोमेंटरी मोटिवेशन आपको घर से जिम तो ले जाती है, लेकिन जिम में 10 on 10 देने के लिए नहीं रहती रोज। या नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड मैं भी मतलब ये अच्छे कोट्स मैंने ऊपर यहाँ पे लगाए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, ये मेरे को ताकि याद रहे हमेशा कि 100% क्या करना है। बट डेफिनेटली आई वुड अग्री विद वन थिंग, दैट यू हैव टू हैव अ बिगर मिशन। जैसे मेरा विजन ये है कि I want to touch 10 million lives, before I retire, right? So 10 million lives, I need to change them. I need to touch them by any means possible, right? मैं कल को रियल एस्टेट में जाऊंगा वैसे, या फिर मैं अपना फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर करूं वैसे, या फिर यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट, 10 million lives that I need to change, and that's what keeps me going. And I definitely agree with you कि वो एक चीज आनी बहुत ज्यादा important है, if you want to keep going. So I love that. What
अब 9 साल हो गए जब हम आते हैं यहाँ पे, या फिर जब हम 20s में होते हैं ना, तो हमें गाड़ियों का बड़ा शौक होता है कि नहीं यार मस्टैंग चलानी है यहाँ पे जाके। बहुत सारे जो पंजाब से भी हमारे लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं तो $2,500 की सैलरी होती है, $1,200 की गाड़ी की किस्त दे देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर। तो चलो गाड़ियों की बात अलग करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मेरे को इससे प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरी वो चीज है, बट आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आजकल के न्यू इमिग्रेंट जब आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ये चीज कर रहे हैं, बट ये चीज ना उनको जल्दी से सीख जानी चाहिए कि नहीं ये वाली चीज नहीं करनी, एंड दे हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज वेरी मोमेंटरी एंड दिस इज वेरी शॉर्ट विजन। मैंने ना एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन की पॉडकास्ट सुनी थी लास्ट ईयर, और उसने ना एक बड़ी ब्यूटीफुल बात कही। वो कहता है जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज में, सबसे पहली चीज वो देखते हैं कि कम्युनिटी कहाँ पे है, कि कहाँ पे जाके मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो। तो कहता क्या होता है कि अगर आप देखो मेजरली कंट्रीज में एक हब बन जाते हैं कि मतलब ये पंजाबी हब है, ये इटालियन हब है, तो वहीं पे लोग ज्यादातर वो मतलब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं उसके आसपास में ही। तो हम क्या करते हैं कि हम खुद के लिए ही अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ज्यादा काइंड ऑफ कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप न्यू कमर आते हो, आई डोंट वांट टू गिव रेगुलर एडवाइस कि गाड़ी मत लें, ये मत लें, वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ न्यू कमर्स हु कम, फर्स्ट थिंग दे आर लाइक यार ब्रैम्पटन पंजाबी है, ब्रैम्पटन रहना जाके, मिसिसागा च रहना, माल्टन च रहना। I say, okay, why don't you want to make yourself uncomfortable? Why don't you go to Windsor? Why don't you go to London? Why don't you go to Oshawa? Why don't you go to Barrie? Why don't you want to go outside where you can see different opportunities? Because you are going in the same culture, same language, same food, same everything. You are going from one place, like I said, same mindset. अब इन्वायरमेंट भी सेम ही हमने बना लिया अपना। तो मतलब कहने को हम एक फॉरेन कंट्री में है, लेकिन हम वी आर नॉट इवन एक्सपोज्ड टू द फॉरेन कल्चर। हर एक नई लैंग्वेज जब आप सुनते हो, हर एक नया फूड जब आप ट्राई करते हो, हर एक न्यू कल्चर को जब आप एक्सप्लोर करते हो, हर एक न्यू मूवी देखते हो, हर एक न्यू पॉडकास्ट सुनते हो, जो चीजें आपने नहीं देखी, आपका दिमाग एक एक्सपैंड होता है, आपको नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि यार अगर आप नए हो, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यार, मुझे तो ये भी नहीं पता था कॉफी कैसे ऑर्डर करनी है, मुझे ये भी नहीं पता सुशी क्या होती है। मैं तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फ्रॉम द पिंड था, मतलब कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे मैंने कुजीन्स लर्न करनी शुरू की। शुरू में बकवास फूड खाने में ये क्या है, फिर धीरे धीरे टेस्ट बड्स बनने शुरू हुए, और उससे फिर कल्चर समझ आना शुरू हुआ। या फूड एक्सप्लोर किया, कल्चर एक्सप्लोर किए, डिफरेंट कंट्रीज में जाना। पहले मैं होता था इंडियन रेस्टोरेंट पे जाना है। These things might sound really small, but they really help you expand your horizons and understand life in a very different lens. So that's my advice to everyone. Go explore. You feel scared. जितना आप अनकंफर्टेबल जगह पे जाओगे, उतना ही आप लर्न करोगे और ग्रो होगे। बिल्कुल। पंकज, ये अब लास्ट सेक्शन है। So I am very inspired by Jay Shetty. So who I really like his spirituality and the way he does business and the way he speaks. तो मैं उनके बहुत पॉडकास्ट सुनता, तो उनका एक सेक्शन होता है जो मेरे को बहुत सही लगता है, and we'll do it in context of Canada. So 9 साल हो गए यहाँ पे, and we discussed what's the best advice that you got ever, like the best advice. The thing I said earlier, ki the more you're gonna love and accept this country, the more this country is gonna love and accept you, and that's all we all want. Call it right? home when you come We here. want prosperity. We want to make money. We want to get successful. We want to live life like we definitely find it difficult to live in the countries we are from. So if you are looking to do that, matlab, accept it. Accept the cold. Make peace with it. It is what it is. Accept however way things are here. And जैसे वो बोलते हैं ना, अगर आपका घर में अगर कुछ टूटा है या कुछ खराब है, तो आपका घर है, कर लो, ठीक कर लो। That mindset. That is the best advice I got. कि ऐसे मत सोचो कि हम यहाँ पे इमिग्रेंट हैं और हम सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, क्योंकि फिर then you're never gonna feel fulfilled, complete here. And what's the worst advice? A मिठी जेल है. that I think that's the worst advice. Like I think everyone who is listening right now, I'm sure at some point they were newcomer, they must have heard it, that there is nothing.
It's like people already like यार यहाँ पे तो यार टैक्सी ड्राइवर कर सकते हो या ट्रक ड्राइवर कर सकते हो या फैक्ट्री में काम कर सकते हो, and if you are in a BC area you go and in a berry farm, it's already like set कि यार यही करना है और यही ट्रेजेक्टरी है कि पहले आप डिस्पैच कर ली, फिर ट्रक ड्राइवर बन गए, फिर आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली, फिर इतने ले लिए. So don't just tell. जैसे वो बंदे ने मुझे बोला था कि पहले तुझे फ्री काम करना पड़ेगा, पहले रोटी मिलेगी, फिर तुझे हम ये दे देंगे, पहले ही मतलब कि पहले एक पाथ बना दिया. हाँ, कि तुम्हारी डेस्टिनी पहले ही सही कर दी. That's the worst advice, and I would tell people don't listen to the advice like that. You can do anything you want. Perfect. एक लास्ट चीज मेरे को पूछनी थी अबाउट मनी. सो लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, सबको कमाना होता है, राइट? जो लोग बोलते हैं नहीं कमाना, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या तो बहुत ही ज्यादा लाइक स्पिरिचुअली दे आर वेरी वो. सो यहाँ पे जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं तो आप पैसे के मामले में उनको क्या एडवाइस करोगे? कि जैसे लोग कहीं सोचते हैं कि नहीं मैं ज्यादा पैसे कमाऊं तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. सो फ्रॉम अ मनी माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ दैट यू हैव earned a lot of money, you came with zero money, you earned a lot of money, you lost a lot of money, and you continue to earn money. So what's your advice or what's your thinking about money as a new immigrant? I have learned through my life experiences, because I've seen extreme poverty in India, and I'm talking about extreme poverty where like for no food, no money, none of that stuff. And I've been very blessed to see the other side of it too. So I've seen polar opposite things. And my lesson from life about money is a mindset. Abundance is a mindset. If you see money as a scarce resource, कि यार money is a scarcity, कि सिर्फ दुनिया में 100 करोड़ पैसे हैं टोटल और उसमें से मुझे 10 करोड़ लेने हैं और मेरा हिस्सा ये है, right? तो फिर I feel like then you're gonna be in a race always. It's never gonna end. जब आपको ये पता लग गया कि money is a byproduct of your mindset, then you will focus on thinking money, not earning money. I think that's like how my outlook on money is, that the more you chase it, the more it runs away from you. आज आपके पास 60,000 है, कल लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, आप हमेशा मतलब आपको दिखता रहेगा यार दूसरे बंदे के पास मेरे से ज्यादा है. That's always going to be the case. Once you understand it's a mindset, and whoever you are today, and this is for everyone listening, including myself, wherever you are today, whoever you are in terms of money is a direct correlation with how you think about money. And that's a reality, right? And that's why you mentioned that people who are spiritually inclined don't care about money, because for them it's like क्या मनी के साथ रोटी आनी है, वो तो मिल ही रही है, कपड़े हैं या मतलब छत है और क्या, राइट? गाड़ियां ये तो मुकने ही नहीं है, आज मर्सिडीज है, कल को लैम्बोर्गिनी हो जाएगी, फिर मेबैक हो जाएगी, ये तो खत्म ही नहीं होनी, फिर हेलीकॉप्टर लेना है, वो चीजें तो चलती रहेंगी. I find like finding relation between who you are being is and why you are getting the results. Once you understand that, अगर फिर मनी मोटिवेशन है तो आप अपने काम ज्यादा करने शुरू कर देंगे, राइट? कई बार हम मतलब सोचते वैसे ही रहते हैं और सपने हम लेते रहते हैं कमाने के लाखों के. एक मुझे एक एडवाइस बहुत अच्छी है, पिछले थोड़े से सालों में मैंने लर्न की है बुक्स रीड करके, कि इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन. क्योंकि बिलियनियर, राइट, स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन. बिलियनियर क्या करता होगा दिन में? वो ये तो करता नहीं होगा सारा दिन, मतलब एक जॉब पे बैठा है जिसपे $15 घंटे के मिल रहे हैं, वो मतलब सोच रहा है, वो अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है, वो अपने का रीड भी कर रहा है, वो लोगों के साथ नेटवर्क भी कर रहा है. वो चीजें तो हम भी कर सकते हैं ना. सो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स व्हिच अ बिलियनियर इज डूइंग, यू विल बिकम अ बिलियनियर, बिकॉज़ बिलियनियर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग हु यू आर. That's amazing, and I think हम same books read करते हैं, because मैं बिल्कुल यही चीज बोलने वाला था when you were speaking in the beginning. So I love it. Thank you so much, Pankaj. I'm sure कि ये आधे घंटे का जो podcast हुआ है, I think a lot of lives are gonna be changed. क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर एक बंदा, जितने भी लोग सुन ले, एक बंदा भी अपनी लाइफ चेंज कर ले हमारी इस कॉन्वर्सेशन से, तो जो आधा पौना घंटा हमने स्पेंड करा, आई थिंक दिस विल बी वर्थ इट. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी मेड इट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट that we are doing this. Thank you. Very, very grateful for this opportunity. And I never imagined, I am just a regular kid from Ludhiana who never really thought he will be even appearing on a podcast. Forget about like, talking and stuff. If I can do it, any one of you can do it. So like dream limitless and keep taking action. Thank you so much, Pankaj. And because you have come from such a humble background, I think you have
you are still grounded, and that's amazing. And that's one of the good things, that I see in a lot of people who are successful. And I really wish for me and whoever is listening to this that they can learn, this from people like you. So people, would like to reach out to you. You have mortgages, you have a podcast channel. So tell the audience, where they can reach out to you or where they can hear and follow more of you. So I have been very passionate about sharing my learnings and my life stories and bringing other people like-minded to talk on a podcast called Conscious Brainwash. We've been doing it for the last 2 years. And the intent is to just help people understand importance of healthy, holistic habits, which can help you elevate your consciousness and which will elevate your lifestyle and your well-being. So that's the premise of the podcast. And we talk about life strategies, the different ideas around accelerating your growth journey. And then I have been mentoring and coaching a lot of new mortgage agents and real estate agents for the last few years. Again, I don't find myself to be a guru or a coach because I don't think if I know anything special, but I just share what I learn and what I've done. And it has helped a lot of people find a lot of success. So last year, I started doing a coaching program called Ignite Your Superpowers. And I believe everyone has some superpowers within them. And I help them acknowledge, understand, and ignite them. So that's a coaching program I do, and you can Google both of them. We have websites and podcasts on Apple, YouTube, Spotify, awesome. Instagram. Yeah, so my personal account is on Instagram as well. So yeah, I try my best to stay active. Awesome. Thank you so much, Pankaj. Thank you. So that was Pankaj's story. I hope this actually helped you, and the whole objective of doing this podcast is ताकि आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले to actually dream big. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय.